Recording. Okay, we so again I'm going with week number 2 for the review session, and we are going to do solve a few problems. So for week number 10, we are also going to solve a few problems, and we will be then left with 4 more weeks in which we have to do something extra. I'm thinking of moving towards user interface, so most likely from next class we will look into a few examples where we will be creating user interface and working with that user interface. Um, for the time being, we are going to look into problems. And before we look into problems, we are going to look into the assignment that I recently released. Um, I, yes, I forgot about uploading the source files. And the thing that happened was that uh, I actually told it to load those load those files. It loaded those files, but I forgot to click on accept, so it rejected them. But even though, so one of you guys emailed me like, when are you going to upload the source? So I did it as soon as possible. The source is again available online, and you can look at that. But for now, I'm going to explain how what the assignment really is. Maybe some of you guys are confused about that because obviously the assignments, they just cover so much during words, and maybe you might get confused as to what I was talking about. So here we are with an example of HTML and how we are going to use the HTML code and the Java code to produce a website of our own. So we will begin with the HTML. So HTML is stands for hypertext meta language, uh, and this is a language that is being used by all the websites. And because of these websites, you are able to generate web pages. So whatever web page you see, it's at the back end. It is using some sort of HTML to be visible to you guys. And if you want to see that HTML, you can always right click on any web page, and it says view page source. You click on this, and you get the entire code for the website over here. So most of this won't make any sense to you. So there's a lot of HTML, there's a lot of CSS, there's a lot of JavaScript added in these web pages. But for HTML, you will see like these things, they more or less, they are all the same. Okay. So Okay, if can you you look show at again this, how so did you it's first access of this all, it page? says document type, like what kind of document you are doing, and then it's telling us like what language this HTML is in, and then we start with the head. Okay, so in the head we have the title and these other links, the style, etc., etc., etc. And after the head, we at some point we get a body, and that is where you see the body of the entire. So how did you get to open this course? Right click and view source. Uh, so you can always right click and view page source over here, and that's how I got it. Um, uh, that is how it works in that is how it works in Chrome and most of the I think almost all the browsers. Okay, so you can always see this code that way. Um, now, so this is okay. So this is how you can see the page source. This is yes. This is coming. This is becoming a bother. Okay, and we close this. So now if somebody asks you like you have to make a web page, so the most basic web page you can make is you can write it like this. This is the most basic code that you need to write in order to create a web page. So it says try it yourself. So the good thing about W3 schools is that if you write some HTML code, you can always click on try it yourself, and it shows you like if you write this code,
then this is how the HTML is going to be displayed. Okay, this is how your page is going to be displayed. And you can, so let me explain. Like over here, it says that like what is the document type? You say the document type is HTML. You have to write this, and then you have to write like this is from where the HTML code starts. So it's this is called a tag. Um, so you might know about the Twitter tags, like the hashtags that you put, to uh, like in your Twitter feeds or in your Facebook feeds, you always put a hashtag. But this is like a tag which tells us like, okay, from here the HTML code will start, and slash HTML is where you tell it that the code is ending over here. So HTML starts from here, it ends right there. Similarly, the head is uh, is where the page title goes in. So whatever you see over here, whatever is written over here, so that goes into head. So over here it says page title, uh, and and then head starts from here and head ends over here, and then there's body. So in body is whatever is contained in the web page. So that is where the body starts. So you write like body over here, it starts from here, it ends here. And then H1 tells us like this is heading number one. So heading number one starts from here and heading number one ends over here. Similarly, this is paragraph. So the paragraph starts from here and ends over here. So we can make changes to this. We can always like suppose you want to have a second heading. So you can just copy this and you paste it over here and you write H2. H2. So this is heading number two. It's not heading number one, it's heading number two. This is a second heading. So you can just simply, like this is heading number one. So it is the most prominent heading. This is heading number two, which is the less prominent heading, but still is a heading. So you can write it over here. You type run, and you can see how the HTML is generated over here. So your web page is generated over here. So that is how it normally happens. Now, suppose you say that, okay, this is like what is happening within the web page, but how to make your own web page. So what you can do is you can just copy this code. You can just copy this code and you go to any folder. In this case, I'm going to Java folder. I right click, I go to new, and I go to uh, when did you learn HTML? You did not. You're learning it right now. Uh, so you come over here, you click on text document, just like you create a Java text file. So you can give it any name. You can call it my HTML, my HTML dot HTML. So like in Java, you write dot Java. In HTML, you write my HTML. You just click on it. It will complain like you're changing the extension. You just say yes. And now it shows this as a web page. Now, if you right click on it and you open it with, suppose, choose another app. So I will select not Edge. I will select Notepad. I can go with Notepad. I don't have Notepad plus plus. Okay, let me go with Notepad. Okay. So I have this code. I have this web page open in Notepad. I just click paste. So all the code of it is pasted over here. So this is second heading, and I can make changes to this. And I write and you write third heading. Okay. So I write H3. So this is the third heading. And I click save. So now this is saved. Now once it is saved, what I can do is I can just click on my HTML.html and it will show me the web page. Okay, so this is a heading, this is a second heading, this is a third heading. Okay, so what you have to do is all you have to do is you open this HTML in some other it's like over here, I've opened this in Notepad. So you write this code over here, and if the code is correct, so your web page is properly defined. So over here, you can say like it says page title. So if I want to change that, so in page title, I can call it my page title. I save this, and then come over here and just refresh it. Just refresh it, and it says my page title over here.
Okay, so whatever changes you make in the notepad, or whatever changes you make in your code, if the code is correct, so it will show you like the web page is displayed properly. Okay, it will show you the proper web page. It is that simple. Okay, so all you have to do is you have to understand like what these tags stand for and what these tags do. And once you write those tags, so you can write your HTML this way. Okay, so this is how this HTML thing works. Okay, so uh, so once this is done, okay, so once this is done, um, what you sorry. So you have a few uh, different topics over here. So what you will need to do for this assignment is that you have to go to uh, what is title used for? Like over here it says HTML tutorial, so you can differentiate between what tab you have opened up. Okay, so that the title is used for that, so that you can see like what tab is opened up, so you don't get confused like if two tabs are from the same thing. So it will open it in separate tabs. So that is where it is being used. So what you will have to do is you will have to go to these topics one by one and read up on HTML, what HTML is, what is SJ editor, what kind of editors over there, basics, a basic example. So we just did the basic example. And you will learn, well, if you read through it, it's not very long. You can easily read through it and it will show you like there are different examples, and you can always like click on try it yourself and try it out. Okay, so you will have code written over here. You will have the code that you want to try it out, and then you can just click on that and and click on run, and you will see if everything is okay. You will see how your web page will look like over here. Okay, so you can always try it out and check how your HTML thing works. Okay, so it's not that difficult. Okay, so what we are doing in this assignment? Um, what we are doing in this assignment is that you will have a source file like this. And in this source file, we have written it in a certain coded form. So you can see like it says H1 red. It says this is my first heading. It says H2 blue. This is my second heading. It says para. This is the para I wrote. It has two lines. Okay. So so what we are going to do, we are going to write this kind of a source file, and your code is going to read this source file and generate an HTML appropriately. So what this means is that if like you are going to read this source file line by line, uh, so in the first line it says H1 red. So when it reads H1 red, what it will do is it will start writing a file which says H1 and then style, which is equal to something. Okay, so it will start writing something like this. So it will, based on whatever data it gets from here, is going to create another file which is going to be an HTML file. Okay, so that is what it's going to do. So in this case, it's going to create this heading. This heading will be H1 and its color will be red. And similarly, it's going to produce this heading. It's going to be heading 2 and its color will be blue. And then it's going to create a para. So this is going to be a para, and it has no color, so it will be a normal para. So it will generate this file. So you will what your course assignment will do, like what your code will do, you will feed it these kind of files. Okay. So once you feed it these kind of files, it's going to generate appropriate files based on the code which is given over here. So for example, if for this file, it's going to create an HTML file, something like this. Okay. So, this is my first heading, this is my second heading, and this is the para I wrote. It has just 2 lines. And I can, if I want to add another heading, I can just copy this,
I paste this and I can just call it H3. So this is my third heading. Okay. So so this is what your code is going to do. So once you do it this way, so one way of doing it is that you write all the HTML code. But HTML code becomes very convoluted, and it makes creating a web page like this difficult. So what we did is we wrote our uh, own way of writing an HTML, an own format for writing HTML documents. So you write your own format, and your program is going to translate this format into proper HTML. Okay, so this is what is going to happen. So if everything is fine, so I think if I run this code, it will automatically uh, change this file, and it will add a blue heading number 3 over here. Okay, so if everything is correct, so let's see. I think this should work. It was working previously, and okay, it compiled. It said it complained that the file exists already, so but it's still going to write the file. So if I refresh this, this is bio. Yes, if we refresh this, so now you can see like this is my third heading. It just added a third heading. All I did was I did not write the HTML code over here. I wrote this H3 in blue, and this is my third heading, and it created a third heading. Now, if I want to, I think there's a green color as well, so I can again copy paste this, and I write H. Let me put it H3 green. This is my fourth heading. I save this and and then I compile this. And it will again say file already exists, and I come over here, I refresh this, refresh, and okay, so there wasn't any green color, so it just stuck with blue color. Okay, so but you get the idea. Okay, this is green. I think let's make it red. Let's go this way, and I run this again. H4 करना जरूरी नहीं है. Let's see. I think this will work. Refresh. This is my fourth heading. Okay. So you will need to see like how many layers of headings there are. So for example, we have heading and it says heading 1, 2, 3, 4 है, 5 और 6 है. ठीक है, 6 तक है. तो हम इसको 4 भी कर सकते हैं. So let's make it H4. ठीक है. इसको सेव किया. इसको मैं रेड करना चाहता हूँ. मैं भी बताता हूँ कि रेड क्यों नहीं हो रहा था. ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा कि रेड क्यों हो रहा था. तो we run this. And again, we have over here, we run this, refresh. Forwarding नहीं हुआ, मैं सेव करना भूल गया. H4, actually आप H4 को मैंने इसको रन करते हैं फिर से. H4 सेव करते हैं और इसको रन करते हैं एक दफा. And bio, this should work. या फिर कोड जो है उसको सपोर्ट नहीं करता. चाहे कोड अभी फोर्स और हेडिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा. ठीक है, तो कोड मेरा अभी जो मैं लिखा था मैं बहुत बेसिक कोड लिखा था, तो उसमें फोर्स हेडिंग सपोर्ट नहीं कर रहा. तो अब मैं ये बताता हूँ कि आपको ये हो कैसे रहा है. ठीक है, हाउ इज इट इज दिस वर्क. हम एचटीएमएल कोड नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ अपने फॉर्मेट में कोड लिख रहे हैं. इट इज जनरेटिंग दीज एचटीएमएल फाइल्स ऑटोमेटिकली. तो मैं इसको जैसे कि अभी मैं इसमें से कोड नंबर 4 ये 4 निकाल देता हूँ इसमें से. उसके साथ मैं काम करता हूँ. तो it should work with that. So let me compile it again, compile this again, and everything is fine. It didn't show me any error. I go over here, I refresh, and the fourth heading is gone. ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कर मैं ये रहा हूँ कि instead of
राइटिंग द कन्वोल्यूटेड HTML फाइल, मैं ये इस तरह कोड लिखता हूँ एंड इट जनरेट्स द डेटा फ्रॉम मी ऑटोमेटिकली। तो इस तरह करके आई कैन क्रिएट कंप्लीट HTML फाइल बाय राइटिंग द कोड इन माय फॉर्मेट। ठीक है, तो ये दैट इज द एम ऑफ दिस असाइनमेंट। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? तो अब आप देखेंगे सारा का सारा कोड है, तो वी विल गो थ्रू दिस कोड स्लोली। तो हमारे पास मेन फंक्शन को देखें अगर हम, तो मेन फंक्शन में, so this is all the main function has. Okay. So it's, first of all, it says read file. Okay, I've given it the path for the file. This path may be different for you guys. Okay, but for me, I put my code in C, Java, and everything over there. So that is why my path is this. Okay, you might have some other path, so you will have to check this. Then it says like you read the file, you read the source file and put all the source file as a string into HTML. Okay, तो आप इसमें से जो कुछ पढ़ेंगे, all of that will be taken up by HTML. Okay, it will be read and stored in the string HTML. Write file क्या करेगा? Write file जो है bio.html बनाएगा फाइल, ठीक है, और उसमें जो टेक्स्ट लिखेगा वही HTML टेक्स्ट लिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वॉट एवर फाइल इट्स गोइंग टू रीड, इट्स गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू HTML फॉर्मेट and store it into HTML, and then it's going to write that HTML code in this file। ठीक है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको माई बायो कर दें फर्स्ट पे, माई बायो फर्स्ट करके मैं सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ठीक है, so it says file creator my bio. I can go over here, so you can see like my bio is here. I double click on this, I can see the my bio file. I can always right click and view source, and it's showing me the HTML source। देखिए अभी ज़रा साफ सुथरा करके मैंने लिखा हुआ है कि HTML source से कैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। So this is my first heading, this is my second heading, this is my third heading, color blue। वो कलर ग्रीन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि कोड जो है कलर ग्रीन को भी सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हम जाएं और कोड सपोर्ट नहीं करता, इसका क्या मतलब है, हम इधर आते हैं, असाइनमेंट 2 में आते हैं, इसमें H1 H2, ठीक है। अब आप देखें कि H1 पे ये कोड होगा, ठीक है, H2 पे कोड होगा, H3 हमने दिया नहीं हुआ, तो मोस्ट लाइकली H3 तब भी नहीं सामने आ रहा था इसका, ठीक है ना। ये H2 तक ये आ रहा है, H3 नहीं आ रहा, ठीक है। even though I had written H3 over there, now if I want to have H3, तो हम कहाँ गया उसका, बंद कर दी मैंने असाइनमेंट 2। oh yes, if I want to have H3, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली इसको कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे टाइप इफ वी इनकाउंटर H3, सो टाइप 3 हो जाएगी, हेडिंग 3 हो जाएगी थी इसकी वजह से, ठीक। एंड यहाँ पे देखें मैंने कलर रेड और ब्लू डिफाइन किया हुआ था, आई हैड नॉट डिफाइंड ग्रीन, सो आई विल कॉपी दिस, I will put it over here, and instead of blue I write green, and यहाँ पे कलर में ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे अब H3 जो है वो भी सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये कोड में चेंजेस कर इनको सेव किया, आई गो बैक into my source file, so this is H3 blue, I make it green, so this should work now। Obviously I will have to compile again, so if everything is fine, if my changes are fine, so it's going to create my bio, and if I refresh this, so see it shows me like this is now H3, and it has generated the code for the third heading, and it has turned the heading into green। ठीक है, तो अब देखेंगे कि सिंपल कितना हो गया कि व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग चेंजेस इन द सोर्स फाइल, एंड मैं इसमें सिर्फ 2 चेंजेस किए हैं। एक तो ये कि मैंने इसको बताया है कि H3 आए तो तुमने क्या करना है, ठीक।
और मैंने बताया कि अगर ग्रीन पढ़े तो तुमने क्या करना है, ठीक है। तो कलर भी उसका ग्रीन कर देगा। एक और चीज देखें कि यहाँ पे मैं एज सच, यहाँ पे तो मैं रेड कैपिटल्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन और ब्लू जो है मैंने कैपिटल्स में लिखा हुआ। तो मेरा कोड क्या करता है, वो इसको कन्वर्ट करता है कैपिटल्स में और फिर कंपेयर करता है, ठीक है। तो अगर कोई छोटे फॉर्मेट में लिख देगा या बड़े फॉर्मेट में लिख देगा तो गलती को ये थोड़ा बहुत टैकल करता है। अगर कोई गलती कर दे तो उसको ये सही तरह से लिख दे, ठीक है। जी, जितने फीचर डालने होंगे कोड उतना ही बड़ा होता रहेगा, यू आर राइट, ठीक है। तो दे आर ways to make the codes smaller, but yes, that is how it's going to happen. So if you so since you have six headings, so you will have to make all six headings. I have made it till the H3, you will have to go all the way to six, H3, H4, H5, H6, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कोड काम कैसे कर रहा है? ये काम ऐसे कर रहा है कि हमारा जो कोड है वो क्या करता है, एक वक्त में दो फाइल्स एक साथ पढ़ता है, ठीक है। पहले वो ये फाइल फाइल पढ़ेगा ताकि वो टैग उठा सके, और फिर ये फाइल करने पड़ेगा ताकि वो डेटा उठा सके, ठीक है। तो जब एक दफा आपका लूप चलता है तो दो बार वो रीडिंग करता है। तो first it reads the tag, then reads the data, then it reads the next tag, reads the data, reads the next tag, reads the data, reads the next tag, reads the data. अच्छा, this is how I have done it. You don't have to follow this. अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको फॉलो करें। अगर आप अपना कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं और यू वांट टू रीड डिफरेंटली, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का यही फायदा है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही और अगर आप समझते हैं कि ये एफिशिएंट नहीं है, तो यू कैन कम अप विद योर ओन टैग्स एंड यू रीड इट दैट, ठीक है। तो आपके लिए बंदिश कोई नहीं है कि आपने इसी को ही फॉलो करना है। मोस्ट लाइकली आप लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो मेरा जो कोड है वो इस तरह काम करता है कि पहले वो इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, और उसके बाद वो हेडिंग को लिखता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेता है फिर हेडिंग को लिखता है, ठीक है। तो इस तरह ये काम कर रहा है। अब ये क्या करता है, कोड कैसे काम करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको हमने फाइल में पास किया कि जो कि फाइल हमने रीड करनी है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि मैं फाइल रीडिंग पे आ रहा हूँ और अगर आपको क्वेश्चन होगा तो इससे पहले कि आप मजीद कंफ्यूज हो तो पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। वो अभी आपको पता चलेगा कि स्टाइलिंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हमें अभी पता चलेगा। लेकिन मैंने अप्लाई की हुई ना स्टाइलिंग, वो आपको ऊपर ही पता चलेगा। हम कितने फीचर्स डालेंगे वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मोस्ट लाइकली आप जो फीचर्स डालेंगे आप इधर तक डालेंगे, इमेजेस तक, ठीक है। ये सारा जिससे पहले सब कुछ आ रहा है तो आप इमेजेस तक डालेंगे। यू डोंट हैव टू डू टेबल्स, लिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, वी कैन डू दैट, वी कैन क्रिएट एचटीएमएल एट एससीएस। ये इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। अब आप देखें कि अभी मैंने आपको हेडिंग्स पैराग्राफ को बता दिया, इधर तक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आगे पास स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, कोटेशंस ये रह गया। ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। ये बहुत है तो करें ना, टाइम भी तो बहुत है, ठीक है। डरे नहीं इन चीज़ों से, ठीक है, इन चीज़ों से डरना नहीं है, ये करना है, सीखना है इससे, ठीक है। तो डरते रहेंगे ना फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसको डरे नहीं और करना शुरू कर दें। नहीं, वो कहता इन इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट इमरान खान, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। अ, देखें अ, देखिए, जीपीए इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ इस बात को, जीपीए इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने जीपीए अच्छा ले लिया ना और आपका ग्रेड अच्छा नहीं, आपके आगे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो वो जो है वो आगे साथ पूरी जिंदगी रहेगा, ठीक है। आपको जीपीए चाहिए होता है पहले मास्टर्स के लिए या फिर पहली जॉब के लिए। एक दफा की पहली जॉब घुस गए जॉब में तो फिर कोई जीपीए नहीं पूछता, ठीक है ना। वो फिर देखते हैं कि अब आपको आता क्या है। और जीपीए भी तभी मैटर नहीं करता अगर आपका आपका एफआईपी अच्छा होगा, आपको आपने काफी रिसर्च की हुई होगी,
तो ये जीपीए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है. ऑल यू हैव टू डू इज वर्क हार्ड. ये ना इंटेलिजेंस की बात भी नहीं कर रहा मैं, हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ. ठीक है. अगर अगर आप अगर आप डरते रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आपकी स्पीड कोडिंग की कम रहेगी. आपको चीज़ों को समझने का जो है कि हाउ 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 यू एब्जॉर्ब समथिंग, वो आपका स्लो रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस स्लो रहेगी. ठीक है. आप जितनी जल्दी ये काम करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, उतना अच्छा आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे. तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है. ठीक है कि प्रॉब्लम के आप समझ तो लें. आगे सामने पेपर आया और आपको यही समझ में नहीं आया कि पेपर में करना क्या है, तो दैट इज, तो वो तो सबसे पहली बात वही है. हाँ. अ, उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद जो मैटर करता है ये है कि इतनी जल्दी आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. यस, यू कैन अटैच मल्टीपल फाइल्स ऑन एलएमएस. इट कैन बी डन. ठीक है. और अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि सारी फाइल्स को एक जिप फाइल बना के ना जिप फाइल को अपलोड कर दो. यू जस्ट क्रिएट वन जिप फाइल एंड अपलोड द जिप फाइल. ठीक है. तो ऐसा है. अच्छा. एनीवे अब मैं ओके. कोई नहीं, इसको करने के लिए आपके पास मैंने 2 हफ्ते दिए हैं, तो 2 हफ्ते में हो जाएगा. कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. ठीक. इनफैक्ट आप जब ये करेंगे ना, तो जब ये चीज़ खत्म होगी ना, तो यू विल एक्चुअली फील वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ. ठीक है. तो आपको आपको मजा आएगा ये काम करने का. तो अब आप उससे देखें ना कि जब आपने शुरू किया था कहाँ पे हैं थे और अब कहाँ पे पहुंच चुके हैं. तो अभी अभी भी 4 हफ्ते और रहते हैं. सो वी विल गो इवन फर्दर. ठीक है. इसको आपको बेहतर करेंगे आपकी स्किल्स. ओके. तो ये कि सो आई गेस एवरीथिंग इज फाइन ओवर है. अच्छा. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने ए लेवल्स में या हमने एफएससी में प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी. वो मैंने भी नहीं पढ़ी थी. ठीक है. मैं जब आया था अपने बैचलर्स में तभी जाके पता चलता है कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है. ठीक है. मतलब आधे सेमेस्टर वो भी समझ नहीं आता प्रोग्रामिंग कर क्या रहे हैं. देखो आधे सेमेस्टर के बाद समझ में आया था. तो इट्स वेरी नॉर्मल. कोई ऐसी बात नहीं. ओके. So we come to this code. So we get the path over here in the file name. Okay. And uh, and I define an HTML file. Sorry, I define a string HTML, and it has nothing. It is an empty string. So, okay. So सबसे पहले मैं ये define कर दिया. अब मैं क्या करता हूँ कि उसी तरह मैं करता हूँ फाइल नेम. तो जो फाइल नेम मैंने पास किया था वहां पे मैंने फाइल क्रिएट कर लिया. ठीक है. I create a scanner, my reader, which is going to read the file. Okay, जो फाइल मैंने खोली है वो स्कैनर जो है उस फाइल को रीड करेगा. अब ये जहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया. एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया टाइप का और एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया कलर का. ठीक. ये इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि अगर हम इसका कोड देखें इसका अगर हम सोर्स इसका हम सोर्स देखें तो एच कॉमन है सब में. ठीक है. स्टाइल कॉमन है सब में. ठीक. इसका मतलब है एच मुझे हमेशा लिखना है, स्टाइल मुझे हमेशा लिखना है. ठीक. लेकिन 1 2 और 3 फर्क हो जाते हैं. ठीक है ना. तो ये फर्क हो जाता है. और स्टाइल में जो कलर है वो कलर फर्क हो जाता है. रेड ब्लू ग्रीन हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज फर्क हो जाती है. ठीक है. बाकी चीजें मोरलेस वही रहती है. तो टैग वही उसी तरह रहेगा. ठीक. और अंदर का जो डेटा है वो उसी तरह रहेगा. तो इसलिए मेरे पास ये जो टाइप है कि हेडिंग की कौन सी टाइप है ये मुझे मालूम होना जरूरी है और कौन सा कलर है ये मुझे मालूम होना जरूरी है. ठीक. अम, तो इसलिए यहाँ पे मैंने टाइप लिया. टाइप बाय डिफॉल्ट 1 है और कलर जो है वो मैंने भी कोई से दिया नहीं हुआ. तो फिर मैंने लिखा HTML इज इक्वल टू. तो पहले ये एम्प्टी स्ट्रिंग था. अब इस स्ट्रिंग में मैं ये स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ. ठीक. तो ये क्या करता है, ये पहली पहली लाइन में ये लिखता है. फिर ये नई लाइन शुरू हो गई. यहाँ पे HTML का टैग स्टार्ट करता है. फिर नई लाइन शुरू हो गई और एक टैब देता है. और फिर ये बॉडी का वो शुरू कर देता है टैग. इसकी वजह से अगर हम इसमें आए तो देखेंगे इसने HTML का पहले टैग दिया जैसे था. ये ना डॉक टाइप HTML लिखा.
/n, तो ये नई लाइन में आया, HTML का टैग लिखा, HTML, फिर इसके बाद /n है, /n एक और लाइन नहीं है, फिर /t है, जैसे टैब हुआ तो टैब ही वैसे बॉडी आगे आ गई। अब बॉडी का इसने टैग दिया यहाँ पे खत्म कर दिया, तो इसने इधर तक इसने आपका स्ट्रिंग लिखा है, इधर तक, ठीक है, इसने इतना स्ट्रिंग लिखा है और इसने इतने स्ट्रिंग को HTML का हिस्सा बना दिया। So it's HTML started with an empty string, but now we have added this information to the HTML tag, HTML string. अब क्या कर रहा है कि while loop लगाया my reader dot next line। अब ये while loop तब तक चलता रहेगा जब तक के आपके सोर्स के अंदर आपने लाइंस लिखी हुई है, ठीक है, as long as you have a next line it will keep on reading। अब ये क्या करता है कि जो इसने रीड किया डेटा, उसने पहले डेटा के अंदर डाल दिया, एक स्ट्रिंग बनाया, डेटा उसके अंदर डाल दिया, फिर उसने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर उसने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया। ये पहली बार हम देख रहे हैं स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है, ठीक। अच्छा, अब तो मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि इधर तक ये क्या कर रहा है, ठीक। सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रीडिंग वन लाइन, इट इज storing that line in data, then it converts that data into an uppercase and stores it back into data, ठीक है। तो जो डेटा हमने रीड किया था ये उसको अपर केस में करके दोबारा डेटा के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है कि हम कहते हैं कि डेटा जितना हमारे पास डेटा है ये उसको स्प्लिट करे, किस तरह स्प्लिट करेगा, स्पेस को। इसका मतलब ये है कि जहां जहां स्पेस आता है ना, ये उस स्पेस के हिसाब से ये इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो यानी कि पहले वो एक h1 एक सब स्ट्रिंग बनाएगा और फिर वो एक रेड सब स्ट्रिंग बनाएगा, तो इसमें इस स्ट्रिंग को ये दो स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देगा। चूंकि ये दो स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करे इसी वजह से यहाँ पे पास स्ट्रिंग एरे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ होता, फर्स्ट के हाय किलो, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको स्पेस के हिसाब से ब्रेक करता, ठीक है। तो आगे पास जो जीरो लोकेशन है उसमें h1 आता, वन लोकेशन में रेड आता, टू लोकेशन में हाई आता, थ्री लोकेशन में किलो आता, ठीक है। तो ये इस तरह इस पूरे स्ट्रिंग को ये ब्रेक करता है। अब चूंकि इसमें मैंने अभी सिर्फ मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो मैंने हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग किस टाइप की, और मैंने रेड लिखा है, रेड किस टाइप, ठीक है। तो ये काम कर, तो इसने उसको स्प्लिट कर दिया बेस्ड ऑन दिस। तो एक स्ट्रिंग का एरे है जिसका नाम पार्ट्स है, पार्ट्स के अंदर जो है दो वैल्यूज गई हैं, एक एक h1 गई है और एक रेड वैल्यू, ये इस तरह काम कर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक दिया हुआ ऑप्शन जीरो, ये आपको मैं बताऊंगा ये ऑप्शन जीरो क्यों है, ठीक है। अभी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ऑप्शन जिसमें हमने जीरो वैल्यू असाइन कर दी। अब चूंकि इस स्ट्रिंग के अंदर दो पार्ट्स हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स सब पार्ट्स पे याद ट्रेड करें, ठीक है। अब अगर हम इस पे देखें तो आ, हमारे पास आ, दो पार्ट्स हैं, तो ये पहला पार्ट इसने h1 उठाया, दूसरा पार्ट इसने रेड उठाया। तो ये देखेगा कि अच्छा h1 किसी से मैच तो नहीं करता, देखते हैं इफ पार्ट जीरो डॉट इक्वल्स h1, ठीक है। तो ये पहली जो लोकेशन है वो पार्ट जीरो इधर गई है, उसमें h1 आया। तो अगर h1 होगा तो ये क्या कर रहा है, टाइप को वन कर रहा है, ऑप्शन को ये जीरो रख रहा है। ये ऑप्शन भी समझ में आएगा ऑप्शन क्या चीज है। अगर वो h2 रीड करता है टाइप टू रखता है, ऑप्शन जीरो रखता है, h3 रीड करता है टाइप थ्री रखता है, ऑप्शन जीरो रखता है, ठीक। उसके बाद चेक करा कि अच्छा ये पैरा तो नहीं रीड कर रहा, ठीक। अगर ये पैरा रीड कर रहा हो तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा, ठीक है, अगर ये पैरा रीड कर रहा है तो ये उसको चेक कर रहा है कि पैरा रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे में अगर आप देखें तो दे आर नो टू, देयर इज नो स्पेस, इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक दिस पैरा स्पेस पर। तो यहाँ पे ये जो है ये स्प्लिट नहीं करेगा, सिर्फ स्प्लिट कर, क्योंकि कुछ और है ही नहीं स्पेस, तो ये जीरो लोकेशन में सिर्फ पैरा डाल को डाल देगा। तो जब तक वो इसको रीड कर रहा है तब तक तो वो जो एरे बनता है स्ट्रिंग एरे, उसमें दो वैल्यूज डाल रहे हैं, लेकिन जैसे वो पैरा आता है तो तब भी स्ट्रिंग एरे बनाता है, लेकिन सिर्फ उसमें एक वैल्यू डालता है, ठीक है, उसमें दो वैल्यूज नहीं डालता। अब अम,
अच्छा, और यहाँ पे ये टाइप नहीं डिफाइन करा, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन डिफाइन करा है। ये भी आपको पता, मैं बताऊंगा ये ऑप्शन वन क्यों आया हुआ, ठीक है, अभी बताऊंगा। अभी ऑप्शन वन कर, यहाँ पे ऑप्शन जीरो है, यहाँ पे ऑप्शन वन। अच्छा, अब ये चेक करें कि अच्छा जो हमने पार्ट्स रीड किए थे उनकी लेंथ वन से ज्यादा तो नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे इसने हेडिंग रीड की थी वहां पे उसकी वैल्यू वन से ज्यादा थी, ठीक है। दिस इज अ चेक कि अगर वन से ज्यादा है तो ये क्या करे, अगली वैल्यू को एक्सेस करे। क्योंकि पैरा के केस में देयर इज ओनली पार्ट जीरो, लेकिन हेडिंग के केस में देयर इज आल्सो पार्ट वन, ठीक है। तो पैरा जीरो में देयर इज नो सेकंड पार्ट, तो ये पैरा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक चीजें लिखेगा। लेकिन अगर उसमें दो वैल्यूज हैं तो ये अगली वैल्यू को ये एक्सेस करेगा। अभी चेक करेगा अगला जो एक्सेस है वो रेड तो नहीं है। अगर उसने रेड रीड किया तो रेड कलर को रेड कर दे, अगर उसने ब्लू रीड किया कलर को ब्लू कर दे, इसने ग्रीन को रीड किया तो कलर को ग्रीन कर दे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो चीज़ आपको ख्याल रखने वाली है वो ये है कि ये भी हो सकता है कि किसी ने सिर्फ सिंपली ये लिखा हो H1, ये भी वैलिड है क्योंकि यू आर गिविंग द हेडिंग टैग बट यू नॉट गिविंग द कलर, ठीक है। तो कलर देना जरूरी नहीं होता, अगर आप कलर नहीं देंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली विल बी ब्लैक इन कलर, ठीक है। लेकिन अगर आप कलर देंगे तो इट विल बी ऑफ स्पेसिफिक कलर। तो अभी मैंने इसका ये चेक इसमें नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो वो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो कलर को रेड किया, कलर को ब्लू किया, कलर को ग्रीन किया। अब इसमें और कलर्स भी हैं वो भी डाल सकते हैं, कौन के कोई और कलर सायान हो, सायन है वो डाल दें आप, वाइट डाल दें, ठीक है, एक्सेट्रा। वो आपको यहाँ पे कुछ कलर्स आपको डालने होंगे, ठीक। ये करने के बाद इसने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ इस लाइन को टैकल किया, अब हम दूसरी लाइन को टैकल करेंगे। तो इस वजह से ये जो माई रीडर इज रीडिंग द नेक्स्ट लाइन, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन को अभी क्या था, मैंने ऊपर आपको देखा होगा, हमने यहाँ पे हेडिंग्स के लिए मैंने ऑप्शन जीरो रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही पैरा आया तो पैरा के लिए ऑप्शन वन रखा हुआ था। तो वो अब इधर काम आएगा, स्विच मैंने ऑप्शन को पास कर दिया, ठीक है। तो अगर ऑप्शन जीरो है तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, अगर ऑप्शन वन है तो ये पैरा के फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक। तो ये जो फंक्शन हेडिंग का ये क्या करेगा, ये टाइप लेगा, ये कलर लेगा और ये डेटा लेगा। टाइप हो गई हेडिंग की कौन सी टाइप होगी, कलर हो गई हेडिंग का कौन सा कलर है, डेटा है कि इसने जो आगे डेटा पढ़ा था, यानी कि ये क्या पढ़ा था। तो वो चीज़ें आप इस फंक्शन को पास कर देंगे। ये फंक्शन जो है उस इस डेटा की बेसिस पे एचटीएमएल कोड जनरेट करेगा और उस एचटीएमएल कोड को इस एचटीएमएल के साथ अटैच कर देगा, ठीक। अ, इसी तरह अगर ये केस वन होगा तो ये पैरा का फंक्शन कॉल करेगा, उसमें सिर्फ ये डेटा को पास करेगा, ये टाइप और कलर को पास नहीं करेगा क्योंकि पैराग्राफ में हमने कोई टाइप और कलर डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो फिर ये उसको करेगा, है लूप का कोई यूज बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनता भाई, किसने कह दिया भाई कोई यूज नहीं बनता। नहीं? आप हर बार ये अभी तो हम एक लाइन को कर रहे हैं, जब आप ये तो सिर्फ एक लाइन पढ़ के ये सारा काम करेगा, उसके बाद दूसरी लाइन भी तो पढ़नी है। लाइन 65, नहीं लाइन 65 में हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो ये काम हमने रीडर कहाँ गया, ये है ना, डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पहली लाइन पढ़ता है और फिर यहाँ पे ये दूसरी लाइन पढ़ता है, ठीक है। तो ये पहली लाइन पढ़ के अलग प्रोसेसिंग कर रहा है, दूसरी लाइन पढ़ के अलग प्रोसेसिंग कर रहा है। जब दूसरी लाइन पढ़ के प्रोसेसिंग खत्म करता है तो आपका लूप यहाँ पे खत्म होता है, ठीक। और ये लूप जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके नेक्स्ट लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करे कि लूप की जो पहली आइट्रेशन है उसमें ये दो लाइंस रीड करे, एक लाइन रीड नहीं कर रहा। तो पहली लाइन ये यहाँ पे रीड करता है और दूसरी लाइन ये यहाँ पे रीड करता है, ठीक है। तो ये पहली बार ये इसको उठाएगा और दूसरी बार ये इसको उठाएगा, ये दोबारा रीड करेगा। इसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा, फिर वो इसको उठाएगा और फिर वो इसको उठाएगा, फिर लूप दोबारा चलेगा, फिर वो इसको उठाएगा और फिर वो इसको उठाएगा। अब यहाँ पे हमने हेडिंग में टाइप पास किया, कलर पास किया और डेटा पास किया। आप देखते हैं हेडिंग का फंक्शन क्या कर रहा है, हेडिंग का फंक्शन नीचे। हेडिंग का फंक्शन ये कर रहे हैं, देखिए टाइप आई, कलर आया और टेक्स्ट आया,
तो ये एक हेडिंग का एक स्ट्रिंग बनाता है। सबसे पहले ये करता है कि स्लैश एंड स्लैश टी, ठीक है। तो अगर हम सोर्स में नहीं, इसमें जाए माय बायो, ठीक है। तो स्लैश एन सिर्फ नई लाइन में है, स्लैश टी 2 बार स्लैश टी है, तो ये 2 बार टैब लगा दिया इसने, ठीक है। उसके बाद ये कोड को राइट करना शुरू करेगा। तो ये तो इससे ये काफी ऑर्गेनाइज करके लिख रहा है कोड को ऑटोमेटिक। अब क्या एच, इसे लिखा कोड में, स्ट्रिंग में लिखा एच लिखा, और उसके बाद प्लस टाइप किया। अब टाइप 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे एच के साथ 1 2 3 4 जो है वो अटैच हो जाएगा। तो इट विल बिकम H1। अगर यहाँ 1 होगा तो H1 हेडिंग बन जाएगी, 2 होगा तो H2 हेडिंग बन जाएगी, 3 होगा तो H3 हेडिंग बन जाएगी। तो टाइप यहाँ पे आएगा। फिर हमने कोड लिखा स्टाइल कलर, ठीक है। देखिए स्पेस दिया हुआ है, स्पेस देके स्टाइल स्लैश कलर प्लस कलर, तो जो कलर हमने लिखा था रेड ग्रीन ब्लू वो इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कोड हमें लिखना होता है ये वाला, ठीक है। सभी कॉलम नाम लिखते हैं, तो वहाँ पे ये स्टाइल पूरा हो जाता है। उसके बाद ये आपका जो टैग है H1 टैग, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप टेक्स्ट लिखते हैं, तो टेक्स्ट हमने जो पास किया था हेडिंग का टेक्स्ट वो इसमें लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टैग को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन एच, चूंकि यहाँ पे H1 था तो यहाँ पे टाइप मुझे लिखना पड़ा है, तो एच यहाँ पे भी H1 हो जाएगा, और ये उस टैग को क्लोज कर देगा, ठीक है। ये सब कुछ लिखने के बाद ये जो हमने पूरा स्ट्रिंग लिखा है ये उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये जो हेडिंग का फंक्शन है ये काम कर रहा है, आपका एक हेडिंग क्रिएट करता है ऑफ अ सर्टेन कलर एंड देन रिटर्न्स दैट हेडिंग। जो भी हेडिंग रिटर्न करता है वो आपके इसमें यहाँ पे HTML के अंदर वो चीज़ को ऐड कर देता है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि इतना हमने कोड पहले लिख लिया था, उसके बाद अब उस कोड के नाम, एक हेडिंग है तो हेडिंग को ऐड कर रहा है, दूसरी हेडिंग को ऐड कर रहा है, तीसरी हेडिंग को ऐड कर रहा है, पैराग्राफ जहाँ पे है तो ये पैराग्राफ को ऐड कर, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये कोड जनरेट हो रहा है सारे का सारा, सही है। तो सब डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने कितनी हेडिंग्स दी हैं और कितने पैराग्राफ्स दिए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कोई भी पैराग्राफ कर देंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। दिस इज द पैरा, दिस इज द सेकंड पैरा I wrote, it has 2 lines, ठीक है। तो अब इस तरह करके it has 2 lines and some, इसको आप सेव कर ले। सेव करने के बाद इफ मैंने अगर कोड ब्रेक नहीं किया, इसको रन करूँ तो कोड ऑटोमेटिकली प्रॉपर्ली जनरेट हो जाएगा। माय बायो पे हम आए, इसको रिफ्रेश करें, तो आगे पास एक तीसरा पैरा भी आ गया। इसको हम जाके आप व्यू सोर्स कर सकते हैं, व्यू पेज सोर्स करते हैं तो आप देखें H1 रेड आ गया, H2 कलर ब्लू आ गया, H3 कलर ग्रीन आ गया। तो ये पहला पैराग्राफ इधर आ गया, दूसरा पैराग्राफ इधर आ गया, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज we are writing our own format over here. The computer reads this format and it generates the HTML code based on that format. Sir, will the code crash if we write more than one line in the same para tag? No, it will not crash. I don't think it will crash. No. Yes, it will crash. ये current जो code है, it will crash. ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये directly जो है ये पैरा के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। हम दूसरी लाइन लिखते हैं तो since it's reading 2 lines at a time, तो आपका जो order है reading का वो फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो वो obviously it will crash, ठीक है। तो क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि इट इज रीडिंग द टैग फर्स्ट एंड देन द डेटा, टैग फर्स्ट एंड डेटा। तो अगर आप यहाँ पे एंटर डाल देंगे तो इट्स एक्सपेक्टिंग अ टैग बट यू विल बी गेटिंग डेटा, ठीक है। दिस इज, ठीक है। तो ऐसे में कोड क्रैश कर जाएगा। तो ऑब्वियसली इस समय आपसे कहा था यू आर मेकिंग योर ओन फॉर्मेट ओवर हियर, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को प्रॉपर्ली रीड करने के लिए वो कोड ऐसा लिखना है जो कि उस फॉर्मेट को प्रॉपर्ली रीड करे। आप इसको रोबस्ट जितना बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, यू कैन मेक इट वेरी वेरी रोबस्ट। लेकिन अभी के लिए जो मैंने कोड लिखा है उसमें क्या करते हैं, वो एक वक्त में 2 लाइनें पढ़ता है और उसकी बेसिस पे काम करते हैं, एंड दैट इज फाइन। क्योंकि जिस तरह आप इधर देखें कि मैंने जब कोड जनरेट किया था तो I was getting the next para, तो instead of writing enter I just create a new para and it works that way, ठीक है। तो नई लाइन में एक नया पैरा मैंने बना दिया, तो it is working that way. That is the format that I have created.
तो इसमें आया था, कहाँ गया वो। अब जो पैराग्राफ का कोड है उसका जो फंक्शन है, इट्स प्रीटी सिंपल। कि आप आते हैं पैरा में, तो आपने पैरा का स्ट्रिंग डिफाइन किया, उसके अंदर उसी तरह स्लैश एन स्लैश टी स्लैश टी किया, यहाँ का पैरा का टैग स्टार्ट किया, अगेन यू डू स्लैश एन स्लैश टी, देन यू राइट द टेक्स्ट एंड देन यू क्लोज द टैग। जब आप ये काम करते हैं तो आपके पास इस तरह का कोड जनरेट हो जाता है कि पैराग्राफ आपने स्टार्ट किया, राइट द कोड, एंड ऑन पैराग्राफ को बंद किया, यू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, राइट द कोड, यू स्टॉप द पैराग्राफ। ये सब कुछ करने के बाद, ये सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद it adds this to the HTML which is the ending tag। ठीक है, बॉडी को हमने क्लोज किया, हमने HTML क्लोज किया, और उसके बाद myreader डॉट क्लोज कर दिया। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये करता ये है कि it first of all writes this code, then based on the text file it writes all this code, and uh, once this code is done, the text file is done, it adds this code again and it completes the HTML file। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा काम है, ये आपका फाइल के जरिए से आ रहा है। ठीक, ये सारा का सारा काम। तो अब आप ये देखें कि आपकी कोडिंग जो है डायनामिक है, कि आप जैसे फाइल्स के अंदर डेटा ऐड करते हैं उस हिसाब से आपकी जो एचटीएमएल फाइल है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज टू राइट द दिस दिस कोड प्रॉपर्ली। आपको इसमें गलती करनी है, फॉर एग्जांपल इफ यू मेक इट पैरा 1, इट विल मोस्ट लाइकली कॉज एन एरर। ठीक है, तो आपको इसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट में राइट करना है। तो इस तरह आपने ये पूरी की पूरी फाइल जो है वो जनरेट करनी है। ठीक है, अब तो अब इसमें देखें, मैंने हेडिंग का फंक्शन बनाया है, पैराग्राफ फंक्शन बनाया है, ये इसलिए बनाए हुए ताकि आप इसका ना फायदा इसको सीख सकें कैसे। अब एचटीएमएल स्टाइल्स में जब आएंगे तो स्टाइल्स में आप देखें तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे रेड कलर ब्लू कलर दिया, आई एम बिग टू ट्राई इट योरसेल्फ करें, तो यहाँ पे स्टाइल कलर दिया हुआ है। ठीक है, और फॉन्ट साइज भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये स्टाइल आपको डालना होगा, ये फॉन्ट साइज क्या है, विच मीन्स कि आपको पैराग्राफ के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट, अभी मैंने कुछ नहीं डाला हुआ तो आपको ये डालना पड़ेगा पैराग्राफ के अंदर। और फॉन्ट साइज जो है आपको उसके अंदर हेडिंग में भी आपको डालना, मेरे ख्याल में हेडिंग में चलता है, आपको ये डालना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट आपको पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप ना सिर्फ कलर दे रहे होंगे, आप उसको साइज भी दे रहे होंगे कि कितने साइज का आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए। अब इसको हम इधर इसी तरह और स्टाइल्स दिए हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, ये चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है अपने कोड के अंदर। ठीक है, मैंने अभी तक आपको सिर्फ टेक्स्ट कलर दिखाया था, तो बाद में बाकी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर दी। फिर फॉर्मेटिंग का है कि फॉर्मेटिंग जैसे इटैलिक वगैरह, ये आपको इसके अंदर ऐड करना है कि कैसे आप ऐड करेंगे, तो यू हैव टू फिगर इट आउट। कोटेशंस कैसे डालते हैं, ब्लॉक कोट, ये आपको चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। कमेंट्स कमेंट्स जो है इसका कुछ नहीं ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट्स को ये इग्नोर करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे अगर टैग में ये आ रहा है, टैग की शुरुआत इस पे हो रही है, तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू इग्नोर दैट, तो यू कैन इग्नोर द कमेंट। कलर्स आ गए। ठीक है, ये कलर्स दिए हुए हैं, तो आप ये एटलीस्ट आप ये कलर्स इसमें ऐड कर दें। ठीक, फिर सी एस एस को आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सी एस एस जस्ट स्टाइलिंग, स्टाइलिंग करने का ये, या स्टाइलिंग कैसे करें, तो दिस इज इनलाइन सी एस एस इज फाइन, ये वाला फाइन है। इंटरनल सी एस एस आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल सी एस एस जस्ट यू डोंट हैव टू डू इट। अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने देखा स्टाइल दिया हुआ है, बॉडी दी हुई है, H1 दिया हुआ है कि H1 का कलर ब्लू होगा एक्सेट्रा, तो ये स्टाइल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लिंक्स लिंक्स ये होते हैं कि जो आप लिंक लिखते हैं, तो इफ यू व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक यू गो टू अ सर्टेन पेज, तो पेजेस के दरमियान ब्राउजिंग के लिए आप ये लिंक्स ऐड करेंगे। और फाइनली आगे पास इमेजेस आ जाएंगे। इमेजेस की वजह से आपकी जो आपकी वेबसाइट है उसमें ये इमेजेस आना शुरू हो जाएंगे।
ये सब करने के बाद तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम असाइनमेंट को पढ़ें। ठीक, तो शुरू से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए कि असाइनमेंट क्या क्या रही है। ठीक है, आपने इसी तरह आ, आप इस तरह आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा यू विल सबमिट 2 फाइल्स। ठीक है, तो एक सोर्स फाइल होगी जिसमें एक मिनट, कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने। ओके, यहाँ पे 2 फाइल्स नहीं है। ठीक है, यू आर गिवन 2 फाइल्स। ओके, मटेरियल्स में यू आर गिवन 2 फाइल्स। यू विल सबमिट 2 फाइल, यू विल नॉट सबमिट 2 फाइल, यू विल सबमिट मोर फाइल्स। मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी फाइल्स आप सबमिट करेंगे। तो हम इस पे आते हैं मटेरियल्स। आपको मैंने असाइनमेंट 2 दी हुई है, मैंने आपको सोर्स टेक्स्ट दिया हुआ है। सोर्स टेक्स्ट दिया हुआ है कि मैं किस तरह सोर्स लिख रहा हूँ। असाइनमेंट 2 का जो कोड दिया हुआ है देखा हुआ है कि मैंने एक बेसिक कोड कैसे बनाया। ठीक है, assignment 2 Java contains some preliminary code that you can read and learn from. This code reads the source.txt file and generates a bio.html file provided that the given paths are correct. I have created a specific format for the source.txt file. The code reads it accordingly and generates HTML code format. So effectively what your code does is that it reads from a text file and generates a web page based on the information given in that text file. You will define your own format to write the required text file. You can either take inspiration from mine or come up with your own format. Your aim is to create a website which will have the following pages. तो आपने जो कोड लिखा होगा उसकी बेसिस पे आप ये पेजेस जनरेट करेंगे। index.html जो कि मेन पेज है, about.html जिसमें आप अपनी अपनी बायो अपने बारे में लिखेंगे, स्कूल आप कौन से स्कूल गए थे। ठीक है, एंड हॉबी आपकी क्या हॉबीज हैं। So effectively, you will create index dot you will create index.txt file जिसमें आपका index.html कोड होगा, about.txt file जिसमें about.html कोड होगा, इसी तरह school.txt file स्कूल का कोड होगा, hobby.txt file हॉबी का कोड होगा। ठीक, each generated HTML page will have some information, a picture and links to other web pages through buttons. ठीक है, तो आपको ये जो जैसे इंडेक्स और HTML है, इसमें आपकी कोई इंफॉर्मेशन होगी, आपकी एक तस्वीर होगी। ठीक है, और आपके पास लिंक्स होंगे कि जिसमें नीचे लिंक्स दिए होंगे कि अबाउट पे जा सकते हैं, स्कूल पे जा सकते हैं, हॉबी पे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या अबाउट पे चले जाए, अबाउट पे जाने के बाद आपके पास नीचे लिंक्स होंगे जो कि जिसकी वजह से इंडेक्स में जा सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, हॉबी में जा सकते हैं। स्कूल चले गए तो आगे पास नीचे लिंक्स होंगे जो कि बताएंगे कि इंडेक्स में जा सकते हैं, अबाउट में जा सकते हैं, हॉबी में जा सकते हैं। इस तरह करके सबके स्कूल होंगे। You can learn how HTML works by reading about it from WC schools. You will need to create or modify functions for the following topics. स्टाइल्स का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, कोटेशन का फंक्शन बनाना पड़ेगा, लिंक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा, इमेज का फंक्शन बनाना पड़ेगा। बाकी फंक्शन मैंने आपको मोर लेस बना के दिए हुए, आपने उसमें सिर्फ एडिशन। So based on the information given in the text file, a person should be able to create an HTML website where he/she could create any heading, set any background text color, put pictures, and create appropriate links. The assignment was the weightage of 2 assignments, so please take it seriously. It will be explained further during lectures. ठीक है, तो वो मैं next lecture में भी explain कर दिया है। असाइनमेंट के जो वेट है 2 असाइनमेंट्स के बराबर है ये, क्योंकि मैं एक बड़ी असाइनमेंट इस क्योंकि हर असाइनमेंट को सबमिट करने में टाइम लगता है। आई मीन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, तो इसलिए एक बड़ी असाइनमेंट दे दी है जो कि 2 असाइनमेंट्स का जितना वेट कैरी करेगी। सो दैट इज ऑल देयर इज टू इट। जी, इंडेक्स की सोर्स फाइल, स्कूल की सोर्स फाइल अलग अलग होगी। आप एक ही फाइल से कर सकते हैं काम, लेकिन जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपलर आप इनकी अलग अलग फाइल्स बना दें। ठीक है, तो हुआ यही था कि जब ये मैंने असाइनमेंट बनाना शुरू की थी तो इनिशियली मैं आपसे एक सोर्स फाइल मांग रहा था, लेकिन वंस आई क्रिएटेड द असाइनमेंट तो आई रियलाइज वी नीड टू मेक मोर सोर्स फाइल्स एंड फिर ये इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो यू विल सबमिट, इट विल बी 4 फाइल्स लाइक 5 फाइल्स, तो मैं इधर लिख दूंगा। ठीक लेकिन वो वैसे भी इधर आपके हुए लिखी हुई है फाइल्स कौन कौन सी। अब ये जो अब आप कहेंगे HTML फाइल हम क्यों नहीं जमा करा रहे, HTML फाइल इसलिए आप जमा नहीं कराए क्योंकि HTML फाइल ऑटोमेटिकली और कोड जो जनरेट कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि आप जब कोड में सबमिट करेंगे, अपनी फाइल सबमिट करेंगे, उन फाइल्स को खोलेंगे और कोड को खोलेंगे,
और हम कोड को चलाएंगे। जब कोड को चलाएंगे तो वो इन इन टेक्स्ट फाइल्स को पढ़ेगा और ऑटोमेटिकली ये फाइल्स को जनरेट कर देगा। फिर हम index.html खोलेंगे और आगे पूरी वेबसाइट को टेस्ट आउट करेंगे कि आगे वेबसाइट सही बनी है कि नहीं बनी। सो दिस इज व्हाट द असाइनमेंट इज। कोई कंफ्यूजन? वो कर चुके हैं असाइनमेंट्स सेक्शन में, मैंने डाल चुका हूँ इसको। चेक आपको चेक करा देते हैं। LMS इसमें आ जाते हैं और असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स में असाइनमेंट 2 इसमें आप जाएं तो ये आपका असाइनमेंट 2 की PDF है। असाइनमेंट 2 का जावा सोर्स फाइल और बायो वाले जो फाइल जनरेट हो रही है, मैंने सब फाइल दे दी है। असाइनमेंट 2 डॉट PDF है, इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ। ठीक, तो अभी मैं इसको चेंज करके मैं इसको जो अपडेटेड फाइल है मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो आपको एक फाइल सही हो जाएगी। So we have to make 4 different Java cores for index. Not really. आप different functions बना सकते हैं. You can just make one, make different functions which read different text files. So you don't have to make different Java codes. ठीक है, उस functions को आप one by one call कर। जी, वेटेज में आएंगे। मैंने अभी आपकी, मैंने शायद पिछली दफ़ा बताया था कि आपकी वेटेज क्या है। आई फॉरगॉट कि क्या वेटेज है। अगर नॉर्मली का असाइनमेंट आपकी 4% की होती है तो उसका वेट जो है 8% होगा। ठीक है, अगर असाइनमेंट 10% की है तो उसका वेट 20% होगा जी, इस तरह। आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा उन्होंने चेक की है कि नहीं चेक की। आई डिड नॉट चेक। PSCS नहीं होता, आई फॉरगॉट क्या होता है। IBA के अंदर होगा, पीपल्स ऑफ IBA पोर्टल डॉट। अच्छा, अ, इसमें देख लेते हैं। पासवर्ड ID रिक्वायर्ड। इसमें हमारे मेन मेन्यू, फेवरेट्स, सर्विस, ग्रिड रोस्टर, ग्रिड रोस्टर, इसमें ग्रिड बुक। अच्छा, अभी ये जनरेट पिन वगैरह करना पड़ेगा तो इसको मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा पेपर सॉफ्ट में। आई विल जनरेट इट लेटर। ठीक है, तो उधर हम चेक कर लेंगे। ठीक, तो आई आई मैंने दिखा सकता हूँ। यू वांट टू सेव योर चेंजेस? नो। तो क्लास रोस्टर दिया हुआ है। खैर, इसमें तो रोस्टर आपका आ रहा है लेकिन इसमें वो नहीं आ रहा है, ग्रेड्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो आई नीड टू चेक कि आपके को ग्रेड्स लगाए कि नहीं लगाए। मैं कुछ दिनों से चेक नहीं कर रहा था। ठीक है, तो क्लास असाइनमेंट्स, ये तो अभी असाइनमेंट्स की बन रही है तो वो मैं चेक करके, आप ना वैसे चेक कर सकते हैं। मैं आप थोड़ी देर में चेक करके आप देख लूँगा। ये तो इसलिए आई एम नॉट रियली श्योर कि उन्हें मार्क्स लगाए कि नहीं लगाए। ठीक है, लगा के मार्क्स इधर ही आएंगे। उनसे मैंने कहा था कि जैसे आप चेक कर ले मार्क्स लगा दें तो यू माइट गेट मार्क्स। ठीक है, तो आज का ये जो आज का लेक्चर मुझे कराना था इट हैज़ गॉन टुवर्ड्स द सेकंड लेक्चर, तो वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
थर्सडे का लेक्चर हमने अपलोड कर तो दिया है। नहीं, आगे पार्टिसिपेंट्स की जो काउंट है ना फिर से गिर जा रही है। ठीक है, तो मुझे सूदन तो अपलोड नहीं करना चाहिए। 15 लोग अभी भी नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, तो जो आए हुए हैं तो उन्होंने तो उनको तो पता चल गया है, लेकिन आई शुडंट अपलोड इट क्योंकि मजाक बनाया हुआ है, वक्त पे आते नहीं है, देखते नहीं है लेक्चर को। और इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उनके लिए असाइनमेंट कैसे करनी है वो मिस कर दिया। क्या कंप्लेन मैनेजमेंट को, स्टूडेंट नहीं आ रहे तो स्टूडेंट क्या, असाइनमेंट तो मैंडेटरी होती है ना। नॉर्मली असाइनमेंट असाइनमेंट मैंडेटरी है ही नहीं, तो स्टूडेंट आर चूजिंग नॉट टू कम। अब वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि उसकी जो है अपलोड हो जाएगी वीडियो, हमें जरूरत क्या है। एनीवे चलें, अब ये बताएंगे आपको असाइनमेंट वगैरह समझ में आ गई, करना क्या। ठीक है, आप इस कोड को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं वो ठीक है भाई, अगर आपके पास पार्टिसिपेंट्स 32 की जगह 40 होते, 41 होते, 42 हो गए, पूरी क्लास जो है 45 की है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अभी देखिए 31 हम लिखा हुआ है ना पार्टिसिपेंट्स, व्हिच मींस 15 पार्टिसिपेंट्स आर नॉट देयर। 15 की तबीयत खराब हुई है तो वो तो इट्स नहीं मान सकते ना इस बात। तो एनीवे, तो जो आज का लेक्चर था वो दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, इट्स ऑल ऑन स्ट्रिंग्स। वी विल बी मेकिंग आवर स्ट्रिंग क्लास, so that has now shifted to the next class, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं अभी को ख़त्म होता है तो मैं आपको अपलोड कर दूँ। आज की लैब ज़रूर कीजिएगा, लैब इज़ इंटरेस्टिंग आज की और इम्पोर्टेंट भी है, तो वो ज़रूर कीजिएगा, उसमें आइएगा, भागना जाइएगा। आप लोग अक्सर भाग जाते हैं, तो लैब को प्रॉपरली कीजिएगा। so that's about it. I think we are almost out of time. तो अब आपसे फिर लैब में मुलाकात होती है। कोई और सवाल हो तो पूछ लें। मैं अपना माइक डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वॉइस चैट से पूछना। So I guess somebody is asking questions, so that's it. So अब आपसे फिर लैब में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।